Welcome back to the session. Chalo. Good evening once again. So let's continue our discussion on the model 2, that is network with independent sources after the switching action, but initial and final conditions. So let's continue. So this is the next question. The switch is in the circuit shown in the figure is at position phi for a long time. It is mu to q at time t equal to 0. Find du by dt at time t equal to 0. ये क्वेश्चन जो है ना ये गेट का क्वेश्चन है. So इसमें ज़्यादा they don't ask you all of them in a single question. मैंने ऐसा बताया ना, the same thing. They don't ask you everything in the one question. So find just du by dt at 0 plus what is dvc by dt. मैंने फॉर्मूला दिया ना, उसको यूज किया तो डायरेक्टली फटाफट आपको आंसर मिलेगा. सो ट्राई करके आंसर बताओ. What is the answer? So switch is moved from position A to position B at time t equal to 0. So 0 के पहले independent source connected to the network for a long time. My network is in steady state. So switch is at this position. This is 5A. Capacitor acts as an open circuit. And inductor acts as a short circuit. Okay. Now, ये पूरा 20K, ये भी 20K है, but वोल्टेज सोर्स का पैरेलल में कोई भी रेजिस्टर है तो इससे कोई फर्क नहीं होता है ना. So 20 by how much current will flow here? By voltage division principle, this will be 5 volt, this will be 5 volt, this will be 10 volt, because ये 20 जो है ना 5 5 10 ऐसा डिवाइड हो जाएंगे, and this current will be 1 milliampere. Right. So this current will be 1 milliampere. So VC of 0 minus कितना? 10. It is equal to VC of 0 plus. IL of 0 minus is equal to
IL of 0 plus, right? So if you draw the circuit at time t equal to 0 plus, this switch is moved from position here to here, right? Five K capacitor, इंडक्टर. सो हम इंडक्टर को रिप्लेस कर सकते हैं. इनिशियल करंट, व्हाट इज द इनिशियल करंट? 1 मिली एम्पियर. कैपेसिटर को रिप्लेस कर सकते हैं. वोल्टेज सोर्स हाउ मच? नाउ what is the required condition? We need to find dv by dt na. So what is dvc by dt equal to IC of 0 plus upon C. Okay. So ये 10 वोल्ट है तो ये भी 10 वोल्ट होता है ना. So इसमें करंट कितना होता है? 10 by 5, 2 मिली एम्पियर. So this is my IC of 0 plus. ये कितना? 1 मिली एम्पियर. ये कितना? 2 मिली एम्पियर. Right. At this node, if you apply KCL, entering current is IC of 0 plus minus 2 milliampere minus 1 milliampere. So आपका IC of 0 plus कितना होता है सर? minus 3 milliampere. So minus 3 into 10 power minus 3 by कैपेसिटर का वैल्यू कितना दिया? 1 into 10 power minus 3. So आपको कितना आएगा? minus 3 volts per second. So ऑप्शंस में minus 3 दिया. सो इज इट ओके एवरीथिंग? एक बार देख लो. सो पहले मैंने क्या करना चाहिए? स्विच यही 2 मार्क के दिया ये क्वेश्चन, यही से ही पे कनेक्ट किया तो देन इनिशियली फर्स्ट फाइंड द इनिशियल. किसी भी क्वेश्चन में ये प्रोसेस तो कंपलसरी. बिफोर स्विचिंग एक्शन फाइंड द इनिशियल वोल्टेज इन द कैपेसिटर एंड इनिशियल करंट इन द इंडक्टर. वो तो निकाल दिया मैंने. सो वो कितना आया? 10 और 1 मिली एम्पियर. देन ये स्विच यहीं पे कनेक्ट किया मैंने. देन I have replaced the capacitor with its equivalent of voltage source series with the capacitance and inductor with a resistance series, inductor with a current source parallel with the inductance. So इसमें आपको क्या चाहिए? IC of 0 plus. What is your IC of 0 plus? क्योंकि IC of 0 plus क्यों चाहिए? Because मुझको DVC by dt चाहिए as per examiner requirement. So IC by C. So this is my current assumed and बिकॉज ये 10 है तो ये भी 10 होना चाहिए. 10 by 5 2 मिली एम्पियर आ रहा है. ये तो 1 मिली एम्पियर आ रहा है. IC will be equal to minus 3 milli ampere. So minus 3 by this one. What is that capacitor value? 1 into 10 power minus 3 will give you minus 3 volt per second. Okay. चलो आगे चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसी मॉडल का. In the below network, the switch key is open at time t equal to 0. So 0 के पहले स्विच कैसा है भाई? क्लोज है. इस केस में आपको क्या निकालना चाहिए? dv by dt at time t equal to 0 plus. So I have opened the switch at 0 only. So dv by dt निकालना आसान क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हैं. What is dv by dt फॉर्मूला आपको पता है, so यूज करो. You will be able to solve it. You can try. Come on.
प्लीज ट्राई, 1 मिनट. राइट, व्हाट इज द आंसर? सभी लोग क्या बोल रहे हैं? सी. ओके. सो बिफोर जीरो, at time t equal to 0 minus ये 10. ओके, मेरा स्विच क्लोज्ड एंड 1k. कैपेसिटर को ओपन सर्क्यूट मत करना चाहिए यहीं पे, क्योंकि बिकॉज दिस सोर्स इज शॉर्टेड, नो करंट विल फ्लो थ्रू द कैपेसिटर, पूरा करंट ऐसा ही चलेगा. सो व्हाट इज द ड्रॉप यू गेट इज 0. सो वीसी ऑफ 0 माइनस इज इक्वल टू वीसी ऑफ 0 प्लस. यहीं पे स्टडी स्टेट में मत लेना चाहिए. देखो, देन टाइम t इक्वल टू 0 प्लस, एक बार मैंने स्विच को ओपन किया तो ये तो 10 आ रहा है. ओके, कैपेसिटर का वोल्टेज कितना इनिशियली 0 है ना. सो कैपेसिटर को शॉर्ट सर्क्यूट करो. एग्जामिनर को क्या चाहिए? व्हाट इज ही वांट? dv by dt ना. सो dv by dt इज नथिंग बट IC of 0 plus. I just replaced capacitor with a short circuit. So what is your IC of 0 plus? 10. So what is dvc by dt? IC of 0 plus upon C, that is 10 by 1, 10 volts per second. बहुत ही आसान है. Straight question. नेक्स्ट हो गया क्वेश्चंस? 1 मिनट. सो अभी तक हमने जो डिस्कस किया दैट इज द मॉडल 2 का क्वेश्चन. सो आपको थोड़ा सा कंफर्ट लेवल मिला टू फाइंड डी बाय डी टी. बहुत सारे मॉडल्स तो हमने किया. सो नाउ लेट अस सी व्हाट वी कॉल द नेक्स्ट मॉडल. व्हाट इज द नेक्स्ट मॉडल इज हियर. अभी तक क्या क्या मॉडल्स किया? पहले सोर्स फ्री नेटवर्क्स, दैट इज स्विच क्लोज करने के बाद, स्विच ऑपरेट होने के बाद मेरा सोर्स निकाल दिया, वो सोर्स फ्री सर्क्यूट होता है. दैट इज डन. सेकंड केस क्या? नेटवर्क विथ सोर्स बट द रेस्पॉन्स एट ओनली इनिशियल फाइनल. अभी तक हमने नेटवर्क पे सोर्स है बट केवल हमने क्या निकाल दिया? इनिशियल फाइनल. सो इनिशियल फाइनल निकालने के लिए तरीका क्या? वो ओपन सर्क्यूट शॉर्ट सर्क्यूट करके इसका रेस्पॉन्स निकल सकते हैं आसान से, कोई दिक्कत नहीं. But now what we are going to discuss is network with sources, response for any time, कोई भी टाइम पे. अभी तक I of 0 plus निकाल दिया, I of infinity निकाल दिया. Suppose if I ask you I of 3 seconds, I of 4 seconds, I at any time
we use this particular concept. Now that is the model 3 questions. Network with independent sources after switching action and response for all time. कुछ भी कोई भी time पे पूछ सकते भाई. We find the response here. Generally we find the response by Laplace transform approach. So here we find the response by Laplace transform approach. But I have one shortcut formula for this model which is very much useful. In first order RL RC networks, okay, the total response can be obtained by, आप देख सकते it is only applicable for first order RL RC networks only. The total response is equal to, can be obtained by total response is equal to final value plus initial value minus final value into e power minus t by tau. Right? What is the total response formula? Final value plus initial minus final e power minus t by tau. Very important formula, very much important, because सारे क्वेश्चंस में हम इसी फॉर्मूला यूज करेगा. जब भी ये फॉर्मूला अप्लीकेबल नहीं होता है ना, उस समय पे हम लैपलेस से सॉल्व करेगा. बट दिस इज द फॉर्मूला वी यूज फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स. सी हियर फॉर एग्जांपल, देखो listen. For example, if you take RL circuit, what is the current in the RL circuit is given by IL of t equal to final value plus initial value. For example, I have RL circuit. What is IL of t formula is given by final value plus initial minus final into e power minus t by tau for t greater than equal to g. This is the formula, same formula. What is that? Final plus initial minus final e power minus t by tau. So IL of infinity plus IL of 0 minus IL of infinity e power minus t by tau, where tau is equal to L equivalent by R equivalent, right? Here, if initial value is 0, that is, इसका मतलब क्या? Initially unenergized. उस केस में इनिशियली अनएनर्जाइज है तो मेरा रेस्पॉन्स इक्वेशन ऐसा होता है. हियर व्हाट इज योर IL of t is given by IL of infinity into 1 minus e power minus t by tau. Right? सर ये फॉर्मूला कैसा आया? अगर इनिशियल करंट नहीं दिया तो एग्जामिनर और इनिशियली अनएनर्जाइज्ड, स्विच 0 पे क्लोज किया, इसके पहले सर्किट पे कोई इनिशियल एनर्जी नहीं है, तो उस केस में ये 0 किया तो IL ऑफ इन्फिनिटी आप कॉमन ले लो, क्या मिलेगा आपको? IL ऑफ इन्फिनिटी इंटू 1 माइनस ई पावर माइनस टी बाई टाउ. इसमें दूसरा केस, लास्ट वाला केस ये होता है, इफ फाइनल वैल्यू इज इक्वल टू 0. इस फॉर्मूला पे फाइनल वैल्यू 0 है, तो फाइनल वैल्यू कब 0 होता है सर?
if it is a source free circuit. सोर्स फ्री सर्क्यूट है तो फाइनल वैल्यू जीरो है ना, उस केस में क्या होता है, इन दैट केस व्हाट इज माय VC ऑफ टी, सॉरी व्हाट इज माय IL ऑफ टी, IL ऑफ टी इक्वल टू सी, इस फॉर्मूला पे इफ फाइनल वैल्यू जीरो है तो व्हाट इज आंसर, IL of 0 into e power minus t by tau. If you remember, is this formula same as what we got it in the source free RL circuit analysis or not? IL of t equal to IL of 0 into e power minus t by tau or not? So इसका मतलब क्या, ये formula जो है ना, it is valid for all conditions. It is valid for all conditions. That is, if initial value 0, final value 0, कुछ भी हो सकते हैं. So केवल ये formula याद है तो सबका सभी RL responses निकल सकते हैं, right? So now listen here. I can expand this formula. I can expand this formula for RC also. इसी formula को मैंने RC को एक्सपैंड कर सकते हैं. सो क्या करना चाहिए वहीं पे, देखो जस्ट बिकॉज थोड़ा सा टाइम सेव करने के लिए. सो सेम एनालिसिस वी कैन डू फॉर RC circuit also. For RC, instead of IL of t, what is the formula? VC of t. Okay. What is VC of t formula? VC of infinity plus VC of 0 minus VC of infinity into e power minus t by tau. What is your tau here? R equivalent into C. अगर इसमें VC ऑफ 0 0 है तो इनिशियली अनएनर्जाइज्ड कंडीशन आएगा. उस केस में मेरा VC ऑफ t क्या होता है, इट विल बी VC ऑफ इंफिनिटी इनटू 1 माइनस e पावर माइनस t by tau. अगर हियर फाइनल वैल्यू 0 है तो उस केस में आपका रेस्पॉन्स क्या होता है सर, VC ऑफ t इक्वल टू VC ऑफ 0 इंटू e पावर माइनस t by tau. देखो RL सर्क्यूट में this is the formula, final plus initial minus final. RC में also same formula. आपको डाउट आ सकते, सर it is applicable only for VC, can I apply for IC also? 100% it is applicable for IC also. हम IC को भी ऐसा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, बट IC के लिए ऐसा फॉर्मूला यूज नहीं करेगा. क्या करेगा, अगर आपको IC चाहिए तो current in the capacitor चाहिए तो same formula is applicable, but simplest way is C dVC by dt. बिकॉज वो फॉर्मूला अप्लाई किया तो ज्यादा टाइम लगेगा, बिकॉज आपको पता है कैपेसिटर का वोल्टेज विल नॉट चेंज इंस्टेंटेनियसली. इफ यू फाइंड VC ऑफ 0 माइनस, यू विल फाइंड VC ऑफ 0 प्लस. बट इफ यू यूज दिस फॉर्मूला फॉर कैपेसिटर करंट, यू विल गेट द आंसर, नो डाउट. बट इसमें क्या दिक्कत होता है, IC of 0 plus is different, IC of 0 minus is different. So I need to find IC of 0 plus separately, IC of infinity, then I need to use this formula. इसके अलावा सिंपल सी बात ये होता है, IC of t can be obtained by C dVC by dt is the easiest method, because already VC पता है तो apply d by dt. Here also same story, if you want voltage across inductor आप apply कर सकते L diL by dt. So इस वाला फॉर्मूला कब अप्लाई कर सकते हैं सर, किसी भी समय पे आप इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू, टाइम कांस्टेंट आपके पास है तो हैप्पीली इसमें अप्लाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है. बट सेकंड ऑर्डर सिस्टम में इस फॉर्मूला इज नॉट वैलिड. सेकंड ऑर्डर का मतलब क्या, RLC वाला नेटवर्क्स, बोथ इंडक्टर कैपेसिटर प्रेजेंट. Or there are some circuits where you have multiple time constants, where resistor part, inductor part, resistor part, capacitor not separable. If it is not a first order circuit, it is not applicable, right? बाकी के सारे RL RC circuits में we can use this formula and find the response for any circuit. In fact, it is applicable for source free circuits also. चलो शुरू करेगा इस वाला चीज. पहले फर्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, determine the inductor initial current in the inductor equivalent shown in the figure. This is given in one of the exam. So आप लोग इसको ट्राई करके आंसर बताओ. मॉडल 3 शुरू कर रहा हूं मैंने.
come on. इसका आंसर बताओ यार. व्हाट इज द इनिशियल करंट इन द इंडक्टर इक्विवेलेंट? मैं इसलिए इस क्वेश्चन पहले स्टार्टिंग पे रखा क्योंकि इट विल गिव यू ए वेरी गुड रिवीजन ऑफ द कॉन्सेप्ट्स व्हिच वी डिस्कस्ड इन द फर्स्ट क्लास. फर्स्ट क्लास में हमने जो कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किया ना, वो कॉन्सेप्ट्स के लिए अच्छी रिवीजन होता है ये. Many of you might forget this figure by this time. Many of you might forget this figure by this time. So इसलिए मैं दिया. ओके, चलो. कोई आंसर नहीं आया मेरे को. जीरो. तो जीरो कैसा है भाई? आई एम नॉट आस्किंग हाउ मच करंट विल फ्लो. व्हाट इज द इनिशियल? अरे यार, सम क्वेश्चन समझो होना चाहिए. व्हाट इज द इनिशियल इंडक्टर करंट इन द इंडक्टर इक्विवेलेंट? फर्स्टली, व्हाट इज दिस इंडक्टर इक्विवेलेंट? आपका स्टैंडर्ड फॉर्म याद है नहीं याद है? व्हाट इज द स्टैंडर्ड इंडक्टर इक्विवेलेंट? इंडक्टर का स्टैंडर्ड इक्विवेलेंट Laplace transform में it is L I naught series with. He is not asking how much current is flowing here. He is asking you what is the initial current in the network. This is the standard Laplace equivalent of the inductor. That figure is given by examiner. Okay. So this is how much? This is 0.5. Yes. Okay. So compare with this. What is your L I naught as per examiner? 12. What is this? 0.5. Yes. Compare करो. SL equal to 0.5 S. So आपका L value कितना from this given figure? 0.5. But L I naught is equal to 12. So I naught will be equal to how much? 12 by L. 12 by L value कितना? 0.5. So what is the initial current in the inductor is 24. That is, he is asking, question is, what is the, in this inductor equivalent, with how much inductor current, initial current, this figure comes into picture is the meaning of the question. ये नहीं इससे इसमें कितना करंट चलेगा, ये ओपन सर्किट में करंट कैसा चलेगा, वो क्वेश्चन नहीं. आप देखो भैया, इंडक्टर इनिशियल करंट बोल रहा है. ओके, दिस इज पार्ट ऑफ इंडक्टर ओनली. आप भूल गया, मैं तो इक्विवेलेंट सर्किट वाला कॉन्सेप्ट में डिस्कस किया. व्हाट इज द इंडक्टर इक्विवेलेंट? करंट सोर्स पैरेलल विद द इंडक्टेंस. दूसरा इक्विवेलेंट लैप्लास में मैंने दो इक्विवेलेंट्स दिया ना. व्हाट इज दैट? I naught by S in series with parallel with SL. Its Laplace transform will be, what is that? L I naught series with SL. दोनों चीज मैंने बताया, आपको याद है नहीं याद है मुझको पता नहीं. This is the Laplace equivalent of the inductor. Okay, चलो. Right. Now the first question comes into picture. So please read this question. I will only explain it. I will only answer it. You just read it. That's all. So अभी तक हमने इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू से निकाल दिया, बट इस क्वेश्चन पे आप डिफरेंस ऑब्जर्व कर सकते क्या? वी नीड टू फाइंड IC एंड VC इन द कैपेसिटर फॉर ऑल टाइम, पूरा टाइम t ग्रेटर देन इक्वल टू 0. So total all time t greater than equal to 0, I need to find the response. Response for all time निकालना चाहिए. So
ये मेरा इनपुट इज 20 u of t. इसका मतलब क्या, मेरा इनपुट इज नॉट प्रेजेंट बिफोर जीरो, it is present after zero only. So can I directly say my vc of 0 is equal to 0? Is it okay? vc of 0 is equal to 0 accept कर सकते, क्योंकि इनपुट इज अप्लाइड एट 20 u of t, इनपुट अप्लाइड एट 0 ओनली, 0 के पहले कोई इनपुट नहीं. So I can say my capacitor voltage, because you can write like this, vc of 0 minus is equal to vc of 0 plus. Okay, so इस वाला सर्क्यूट में, this is the circuit, okay, 20 u of t is connected. So can you tell me what is the equivalent circuit at a time t equal to infinity? Network will be in steady state because my input is applied at 0. इनफाइनाइट तक मैं सर्क्यूट को डिस्टर्ब नहीं किया तो एट इंफिनिटी मेरा नेटवर्क कैसा होता है, स्टेडी स्टेट में. सो माय इनपुट इज हाउ मच, 20. नाउ कैपेसिटर को क्या करना, ओपन सर्क्यूट, इसमें कोई करंट नहीं चलेगा. So what is this voltage? 10. So what is VC of infinity? 10. So इस वाला सर्क्यूट में आपका, that is for time t greater than equal to 0, assume voltage source as a short circuit. आपका R equivalent कितना? Suppose if you assume voltage source as a short circuit with respect to capacitor, what is the R equivalent? 1 plus 2 parallel with 2. What is C equivalent? C केवल one capacitor. Tau is equal to 2 seconds. Now direct formula आपको पता है, because initial value is 0. What is the formula? Vc of t equal to 1 minus e power minus t by tau into Vc of infinity. So 1 minus e power minus t by 2 into Vc of infinity कितना, 10 for t greater than equal to 0. So आपका IC of t कितना होता है सर, C dVc by dt, that is 10 into d by dt of constant 0 minus into minus plus e power minus t by 2 by, that will give me 5 e power minus t by 2. सो आईसी ऐसा निकलेंगे तो आसान है, क्योंकि बिकॉज आईसी में भी वो फॉर्मूला एप्लीकेबल, फाइनल प्लस इनिशियल माइनस फाइनल ई पावर माइनस टी बाई टू. बट आईसी ऑफ सी देखो, फॉर वीसी आई कैन ब्लाइंडली से वीसी ऑफ 0 प्लस एंड 0 माइनस आर सेम. सो 0 प्लस का डायग्राम ड्रॉ करना जरूरत नहीं है. बट फॉर आईसी, IC of 0 minus is different, 0 plus is different. If you want to find IC with the formula of final plus initial minus final e power minus t by 2, दिक्कत क्या होता है, I need to draw the circuit at 0 plus, then find IC of 0 plus, then IC final value, then I need to use the formula. वो ज्यादा टाइम लगेगा ना, इसको अवॉइड करने के लिए what we are doing, simply C dVc by dt, right? Good. क्या नहीं दिया रोहित, ये तो फर्स्ट क्लास में ऑलरेडी ये फिगर में एक्सप्लेन किया. 100% इक्विवेलेंट सर्क्यूट्स का नोट्स पे देखो, नो डाउट इन इट. चलो नेक्स्ट, आपको ये डाउट आना चाहिए, देखो इस क्वेश्चन पे VC of infinity कितना, 10 आया ना. What is the energy in the capacitor at infinity? हाँ, C V square कितना आएगा, 100 by 2, 50 joules. Wait, so मैंने बेसिक्स में ये बताया, whenever the voltage across the capacitor is constant, the capacitor will not store any energy. इंडक्टर में बताया ना, whenever the current through the inductor is constant, whenever the current through the inductor is constant, it will not store
any energy. The same way, whenever the voltage across the capacitor is constant, it should not store any energy because dVc by dt is 0. But here my input is a DC constant, DC which is a constant. But why capacitor is storing the energy? So if you apply DC as an excitation, how the capacitor or when the capacitor is storing the energy is my question. Is it clear? Because ideally क्या होना चाहिए? My dVc by dt equal to 0 है तो it should not store any energy. But for DC excitation, how and when the capacitor is storing the energy? Listen, my input is DC, but मैं ये बोलना चाहिए DC का मतलब ये होता है ना, this is the input you have applied. When you apply this kind of input, transient कब हो रहा है? Because here my input is changed from 0 to 20 all of a sudden. So during this period transient हो रहा है. So over a period of time network will reach steady state. So इस case में what is the response I got it? Vc of t equal to, if you see the response, if you take this as 0, Vc of t का response क्या? 1 minus e power minus t by tau into 10 ना. So it is exponentially increasing and becoming 10. Right? So this is my Vc of t. So आप देख सकते हैं earlier मैंने source free circuit में explanation किया. Now it is network with source. Capacitor is charging like this. So this is my transient period. This is my steady state period. So inside the capacitor क्या हो रहा है? Inside the capacitor क्या हो रहा है ना? आपने इनपुट में डीसी दिया, बट बिकॉज ऑफ द स्विचिंग एक्शन द ट्रांजिएंट विल अकर ड्यूरिंग दिस ट्रांजिएंट पीरियड. आपका कैपेसिटर वोल्टेज इज ए टाइम वेरिंग क्वांटिटी. उस समय पे डी बाई डी टी नॉन जीरो. बिकॉज ऑफ दिस ड्यूरिंग दिस पीरियड कैपेसिटर विल स्टोर द एनर्जी. बट इस क्वेश्चन पे स्टडी स्टेट रीच होने के बाद इसके बाद कैपेसिटर विल नॉट स्टोर एनी न्यू एनर्जी. जैसा हम बेसिक्स में क्वेश्चन किया ना, ऐसा इनपुट दिया तो क्या होता है, सेम स्टोरी हियर आल्सो. During the transient period, capacitor stores the energy. After the steady state is reached, capacitor will not store any further energy. Any further energy. It will not store any further energy. This is how Vc of t is getting charged. And here, if you can substitute t equal to tau, 1 minus e power minus 1 is 0.632. So if you want, I can show that. At a t equal to tau, your input will be 6.32. Right? Like that it at 5 tau, it will reach 10. This is capacitor voltage. If you want capacitor current, here it is charging na, so not negative, positive only, but it will be decaying like this. Okay. This is IC of t. Exponentially decaying voltage, exponentially increase. Okay. So what is my point is here. Right. Here my point is like this. Even though excitation is DC, capacitor is storing energy because
during transient period. Why transient is happening? Because of switching action. Its voltage is a time varying quantity. With positives, it is a time varying quantity with a positive slope. Why transient occurs? Due to switching. Okay. So not only doing the problem, you should understand the concept behind it also. So concept sahi se samajh hua to then it makes more sense. That is the reason एनालिसिस भी बता रहा हूं मैंने ट्रांजिएंट में केवल आप एक फॉर्मूला यूज किया तो सभी क्वेश्चंस का आंसर्स मिल सकते हैं बट एग्जामिनर कोई ट्विस्ट दिया तो कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछेंगे तो यू विल नॉट बी एबल टू आंसर इट यू शुड अंडरस्टैंड द कंटेंट प्रॉपरली देन यू विल बी एबल टू डू एनीथिंग चलो ये क्वेश्चन इट इज जस्ट कंटिन्यूशन ऑफ द प्रीवियस क्वेश्चन ओनली सिमिलर मॉडल का क्वेश्चन आप लोग आई थिंक यू कैन डू इट इजीली नो डाउट इन इट सो प्लीज गिव इट ट्राई 2 inputs. One is 2u of t, another is u of minus t. Just find Vc of t, that's all. Vc of t and Ic of t निकाल दो बस इतना ही so give a try. अगर आप लोग सही टाइम पे डीपीपी प्रैक्टिस नहीं किया तो यू विल बी लैगिंग लाइक एनीथिंग even I teach you with this much intensity these many questions there it will be of no use so देखो 3 घंटे क्लास अटेंड किया तो इसके बाद हाफ एन आवर कम से कम हाफ एन आवर टाइम दे दो भाई नोट्स अच्छी से रिवाइज करने के लिए उसके बाद सम हाफ एन आवर फॉर डूइंग द क्वेश्चंस ऑफ द डीपीपी जैसा 1 घंटा एक्स्ट्रा टाइम दे दो दैट विल डेफिनेटली प्रोटेक्ट दिस 3 आवर्स आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया तो रिवीजन नहीं किया डीपीपी प्रैक्टिस नहीं किया केवल क्लास अटेंड किया तो आई एम सॉरी टू से दिस आप जितना भी टाइम ये क्लास पे स्पेंड कर रहे हैं ना इट विल बी ऑफ नो यूज बाद में ऐसा होता है हाँ सर यू हैव टॉट दिस फॉरगेट ऐसा होता है सिचुएशन सो एनी क्लास नॉट ओनली माय क्लास आप कंपलसरी क्लासेस ऐसा मत सोचना सारे क्लासेस अटेंड किया तो मेरा गेट सिलेबस खत्म हो जाएगा सो मैं सुबह 4 घंटा क्लास अटेंड करेगा शाम पे 3 घंटा क्लास अटेंड नहीं करेगा बीच में कॉलेज जाएगा हो गया दिन ऐसा नहीं कंपलसरी ये वाला क्लास अटेंड किया तो उसको फ्रूटफुलनेस इसका फ्रूट एंजॉय करना चाहिए तो आप लोग क्या करना चाहिए कंपलसरी रिवाइज करना प्रैक्टिस करना कंपलसरी है भाई राइट चलो सही वत्सा ने दिया है ओके प्रीवियस क्वेश्चन का इस क्वेश्चन का आंसर क्या 2 inputs एक u of t एक 2u here 2 inputs are there so आपका circuit is like this up to 0 आपके इनपुट 1 अप टू 0 u of minus t 0 के बाद क्या u of minus t निकाल के here 2 is applied don't add 2 and 1 and take 3 1 is removed and 2 is connected so up to 0 it is 1 0 के बाद it is 2 this is your input right u of minus t means up to 0 1 2 u of t means after 0 2
गुड चलो नाउ फर्स्टली क्या करना है हियर इनिशियल वैल्यू निकाल दो टाइम t इक्वल टू 0 - 0 के पहले कोई स्विचिंग एक्शन नहीं इंडिपेंडेंट सोर्स कनेक्टेड टू द नेटवर्क फॉर ए लॉन्ग टाइम मेरा नेटवर्क कैसा है भाई स्टेडी स्टेट पे सो माय इनपुट इज इक्वल टू हाउ मच 1 राइट ये क्या होता है सर 2 ये भी 2 ये 1 सो कैपेसिटर को मैं क्या करना रिप्लेस इट विथ ए ओपन सर्किट सो इस करंट को जीरो करो दिस इज माय VC ऑफ 0 माइनस सो व्हाट इज योर VC ऑफ 0 माइनस ये करंट जीरो है तो ये 1 विल डिवाइड इक्वली हियर 1/2 सो कैपेसिटर का इनिशियल वोल्टेज मुझको मिला अगेन क्या करना इन्फिनिटी में t इक्वल टू इन्फिनिटी हमारा नेटवर्क कैसा होता है स्टेडी सो नेटवर्क दो बार स्टेडी स्टेट में आ रहा है जीरो के पहले नींद पे है जीरो पे डिस्टरबेंस हो गया थोड़ा सा टाइम के बाद फिर आप लोग स्टेडी स्टेट पे आ जाएंगे ना सो सेम थिंग सो t इक्वल टू इन्फिनिटी व्हाट इज द इनपुट वी अप्लाइड 2 2 2 1 दिस इज माय VC ऑफ इनफाइनाइट कोई करंट नहीं चल रहा है यही पे 1 वोल्ट आएगा सो मेरा VC ऑफ इन्फिनिटी इज 1 so after switching action if you see the circuit R equivalent already previous question में हमने किया same ही circuit है भाई it is 1 plus 2 parallel with 2 C equivalent 1 tau 2 then what is your VC of t final value plus initial minus final e power minus t by tau so ये कितना होता है 1 minus 1/2 e power minus t आपका IC ऑफ टी चाहिए तो C dVC by dt C कितना हियर 1 फैरेड ना d by dt of constant 0 plus 1/2 1/2 minus minus plus 1/2 1/2 1/4 e power minus so आपका IC ऑफ टी कितना होता है सर 1/4 e power minus t by 2 it's exponentially decaying so here if you want to plot the response just I want to show you this so how it is 1 minus e minus at time t equal to 0 its value is how much time t equal to 0 if you substitute 0 here e power 0 is 1 minus 1/2 so here initial value is present so it starts from 1/2 and it reaches 1 like this is your VC okay initially I am saying from 0 से 0 के बाद क्या हो रहा है it is increasing exponentially and reaching right so if you want IC is a 1/4 e power minus e by will be exponentially decaying तो अलग बात okay so this is your VC and IC wait अरे यार मैं ये भूल गया प्रीवियसली मैं स्ट्रीम एंड किया क्लास एंड करने समय पे सतीश और somebody एक लंबी मैसेज डाल दिया I haven't read if you have some patience don't mind please send it again I will read and help you at the end of the class I'm sorry मैं तो actually I end the stream then I checked it I don't that message also disappeared immediately okay now listen here this is your IC and VC इस क्वेश्चन पे for example both are u of t what happens
लेट मी शो यू इस क्वेश्चन पे सी हियर सपोज जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन ओके नेक्स्ट एग्जांपल बोल सकते इफ इनपुट इज इक्वल टू u ऑफ माइनस टी प्लस u ऑफ टी इस केस में क्या होता है जस्ट मैं आपको दिखवाना चाहिए नाउ सी हियर सेम स्टोरी प्लीज लिसन हियर बिफोर टाइम t इक्वल टू 0 my input is u of minus t टाइम t 0 के बाद plus u of t so earlier it is 1 now also 1 so what is the voltage I'll get here both the cases 1 by 2 final value is same as initial value now what is your vc of t formula final plus initial minus final e power minus t by tau that will give me 1 by 2 which is a constant for all t greater than equal to 0 so what will I get here now I will be getting constant so this is how much 1 by 2 this is my vc with respect to time why I am getting constant here आप IC check किया तो it will be 0 because c dvc by dt will be 0 why I am getting constant here because बाय द टाइम t इक्वल टू 0 माइनस मेरा नेटवर्क ऑलरेडी स्टेडी स्टेट पे है सो इसके बाद जीरो पे कोई स्विचिंग एक्शन नहीं है ना यही पे प्रीवियस वाला क्वेश्चन पे जीरो पे स्विचिंग एक्शन हो गया बिकॉज ऑफ दिस स्विचिंग एक्शन मेरे को एक्सपोनेंशियल रेस्पॉन्स तो मिला ट्रांजिएंटरी रेस्पॉन्स तो आ गया ट्रांजिएंट हैपेंड बट इफ जीरो पे कोई डिस्टरबेंस नहीं हुआ तो इफ इट इज ऑलरेडी एट स्टडी स्टेट आप नींद पे है अलार्म रिंग नहीं हुआ सो क्या करेगा आप नींद पे कंटिन्यू करेगा ना आपको कोई डिस्टर्ब नहीं किया तो सो सेम चीज हो रहा है इस नेटवर्क पे सो वट एवर द वोल्टेज इट इज हैविंग एट जीरो इट विल कंटिन्यू अप टू इंफिनिटी सो व्हेन दिस पर्टिकुलर सर्क्यूट स्टोर्स एनर्जीज एट माइनस इन्फिनिटी में जब भी वो वन देता है ना माइनस इन्फिनिटी में उस समय पे इट विल स्टोर द एनर्जी वट एवर में बी आफ्टर दैट वंस इट रीचेस स्टडी स्टेट बाय जीरो माइनस और समथिंग after that there will not be any change so what we are plotting is after 0 it continue in the previous value because there is no switching action at 0 already the network is in steady state by 0 minus at 0 I haven't made any disturbance then क्या होता है it will continue happily like this right same ही question है दो तीन मेथड पे मैं चेंज करके आपको दिखवा दिया okay अच्छा okay no problem so सो अंडरस्टैंड सो आपको समझ हो रहा है ना चीज क्या हो रहा है ट्रांजिएंट के अंदर कैपेसिटर कैसा काम कर रहा है दीज थिंग्स विल हेल्प यू नॉट ओनली फॉर सॉल्विंग नेटवर्क क्वेश्चंस इन द एग्जामिनेशन आप आगे जाके कोई भी सर्क्यूट्स में काम कर रहे हैं आप वीएलएसआई इंजीनियर हो गया और एनालॉग सर्क्यूट सॉल्व करने समय पे भी you will understand the real behavior of the capacitor okay it will be charging at this time it will be discharging at this time these things will help you a lot like to study monostable multivibrator astable multivibrator ये सभी चीज पढ़ने समय पे these things will be very much helpful for you चलो let's move next एक क्वेश्चन दिया गेट पे 2022 के आसपास आई थिंक 2022 if I am not wrong 2022 और 2021 पे दिया सो आप लोग क्या करना चाहिए इसको सॉल्व करना चाहिए सो वेरी सिंपल क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन सॉल्व करके इसका आंसर बताओ अभी तक हमने जो डिस्कस किया इसको यूज करके इसका आंसर बताओ
दिस मॉडल इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग मॉडल 3 जो है ना, इसमें फाइनल वैल्यू प्लस इनिशियल माइनस फाइनल ई पावर माइनस टी बाई टू वाला फार्मूला के क्वेश्चंस तो बहुत ज्यादा आ रहे हैं, इसलिए बहुत सारे लोग बिना नोइंग द ट्रांजिएंट कंप्लीटली ये फार्मूला पता है तो भी समटाइम्स दे आर गेटिंग सेफ एज एंड दे आर थिंकिंग ओके ट्रांजिएंट तो हो गया, but the real person will come out when the question paper comes tough or when something comes with a twist. ठीक है, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, सभी लोग आंसर कर सकते, सॉल्व करोगे। आप देख सकते हैं सर्क्यूट स्विच इज क्लोज्ड पोजीशन फॉर ए लॉन्ग टाइम, स्विच ओपन एट जीरो, जीरो तक वो सोर्स वो सारे पार्ट नहीं है नेटवर्क में, जीरो पे वो तो ओपन हो गया, सो नया इनपुट ऐड हो गया, देन व्हाट इज द करंट इन द इंडक्टर। आप देख के भी बता सकते हैं, फर्स्ट एज्यूम इनिशियल करंट कितना निकाल दो, 10/1, देन फाइनल वैल्यू निकाल दो, स्विच ओपन करने के बाद इंडक्टर को शॉर्ट किया तो 40/5 आ रहा है 8, सो इनिशियल पता है फाइनल पता है, टाइम कांस्टेंट बताओ 0.5/5, ओके हो गया क्वेश्चन, फाइनल प्लस इनिशियल माइनस फाइनल ई पावर माइनस टी बाई टाउ, दैट पर्टिकुलर फॉर्मेट में एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन बी, बिना कैलकुलेशन यू कैन सॉल्व इट। क्यों इतना टाइम लग रहा है आपको? व्हाट इज एल ऑफ जीरो? शॉर्ट सर्क्यूट करो, ये सोर्स नहीं है तो 10। व्हाट इज एल ऑफ इंफिनिटी? ये 40, ये स्विच ओपन किया सो इनपुट इज 40 बाई रेजिस्टेंस इज 5, 8। व्हाट इज द टाउ? एल इक्वलेंट बाई आर इक्वलेंट 5, 1/10। So what is your IL of t? Final plus initial minus final e power minus t by tau। उतना आसान है भाई, देखो। बस नाउ मैं आपके लिए क्या कर रहा हूँ, सारे चीज एलॉबरेटली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, देखो। टाइम t इक्वल टू जीरो माइनस मेरा इंडिपेंडेंट सोर्स कनेक्टेड इन द नेटवर्क फॉर ए लॉन्ग टाइम, सो ये स्विच तो क्लोज हो गया, देखो इस वाला सोर्स को कंसिडर करना नहीं चाहिए बिकॉज शॉर्ट सर्क्यूट है ना, जीरो पैरेलल विथ एनीथिंग नेगलेक्ट, इस सोर्स का करंट कुछ इसमें जा सकते हैं बट दैट पार्ट आई मीन इसमें इसका करंट ही चलेगा बट दिस पार्ट इज नॉट हैविंग एनी इफेक्ट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द नेट। This is my IL. So what is IL of 0 minus 10/1, 10 ampere is equal to IL of 0 plus. Now time t equal to infinite, फिर भी नेटवर्क जी आ जाएगा स्टडी स्टेट, सुबह और शाम पे, रात हो गया, सो नाउ क्या, 10, ये तो 4 एंड अगेन 30, बिकॉज स्विच ओपन किया ना मैंने, देन 1, सो इंडक्टर जी को अभी क्या करना, नींद पे जाना चाहिए, रात हो गया भाई। IL ऑफ इंफिनिटी, सो IL ऑफ इंफिनिटी कितना, 40/5, 8 एम्पियर्स। सो आपका आर इक्वलेंट हमेशा स्विचिंग एक्शन के बाद जो सर्क्यूट होता है ना उसमें निकालना, डोंट फाइंड आर इक्वलेंट हियर, 5। एल इक्वलेंट कितना, हर मिस्टेक कॉस्टली होता है, सो इसलिए एवरीथिंग आई एम स्पेसिफाइंग, आपका जो मिस्टेक्स हो सकते हैं वो सभी चीज, एल इक्वलेंट बाय आर इक्वलेंट 5/0.5, सॉरी 1/10। सो
तो आपका IL ऑफ टी कितना होता है सर? फाइनल वैल्यू प्लस इनिशियल माइनस फाइनल e पावर माइनस टी बाई टू 8 माइनस 2 e पावर माइनस 10 टी, राइट। सो इतना करना नहीं चाहिए ना, मैं स्टार्टिंग डायरेक्टली बताया, राइट। सो एनीवे यू विल गेट द सेम आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो पीपल का एक मिसकंसेप्शन होता है नेटवर्क्स इज वेरी इजी, एवरीबडी कैन टीच द नेटवर्क। ऐसा हो रहा है मार्केट में, ऐसा भी चल रहा है। बिकॉज नेटवर्क इज लाइक दैट, इफ आई टीच इन योर नेटवर्क एनालिसिस, ये सारी चीज में एक्सप्लेन नहीं किया, सिंपल सी क्वेश्चंस किया तो भी आपका सिलेबस हो जाएगा। इन दैट केस यू विल फील अरे यार नेटवर्क तो बहुत आसान है, इसको क्लास भी अटेंड नहीं करना चाहे, मुझको सारे चीज पता है, ऐसा सोच सकते लोग। दैट इज मोस्ट कॉमन विथ मेनी पीपल। बट अगर वंस यू स्टडी फ्रॉम ए प्रॉपर सोर्स यू विल अंडरस्टैंड इसमें जितना सारी चीज है, इतना एनालिसिस है, this much concept which makes you more confident and comfortable with the circuits. So don't underestimate any subject. हर subject में even I taught it this for 400 500 times is अभी भी every time when I teach for a new batch I'll be able to learn something or some new analysis or some new concept will strike out. That happens. So please read this question. बिकॉज मेरा केस में क्या केवल यही एक ही सब्जेक्ट, दो ही सब्जेक्ट में मैं आई हैव गिवन ऑलमोस्ट मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ टाइम ना। सो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हर पर्टिकुलर टॉपिक में डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ एनालिसिस मुझको पता है। सो लिसन, दिस इज द कंडीशन, रेसिस्टर कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज। ये भी प्रीवियस गेट 2020 पे दिया ये वाला क्वेश्चन। 10 volts DC supply through a switch. The switch is closed at time t equal to 0. हर साल तो एक क्वेश्चन आ रहा है ट्रांजिएंट से कंपलसरी, मे बी 1-2 years दे मिस्ड, बट लास्ट 20 years कंसिडर किया तो कम से कम 17-16 टाइम्स क्वेश्चन आया। 2021 और 2022 पे 6 मार्क्स आया केवल ट्रांजिएंट से। चलो, so a resistor and capacitor connected in series to a 10 volts DC supply through a switch. Okay, the switch is closed at time t equal to 0. Okay, the capacitor voltage is found to cross 0 at 0.4 tau, where tau is the time constant. The absolute value of percentage change in the initial capacitor voltage, if the zero changing has to happen at 0.2 tau. इसमें दिक्कत तो ये होता है सारे बच्चों को, क्वेश्चन समझ होना। सो क्वेश्चन अच्छे से, ऐसे आपका गेट एग्जाम पे स्किल is reading the question and understanding the question. If you read the question and understand the question, 50% of your solution is done. So बहुत सारे बच्चे whenever some नया टर्मिनोलॉजी या कॉम्प्लेक्स टर्मिनोलॉजी कम्स, इमीडिएटली हमारा माइंड पे ऐसा होता है ये नहीं हो पाएगा, अरे ये गलत है, और ये व्हाट वी कॉल कंफ्यूजिंग है, ऐसा सोचते हैं। नहीं, आराम से पीसफुल्ली प्लीज रीड ईच एंड एवरी लाइन, try to understand, you will be able to answer it. So please give a try. Anyway I'll explain it, so give a try first. श्रुति, मैं जनरली नेटवर्क और डिजिटल लेता हूँ। इसके अलावा नॉर्मल टाइम पे सिग्नल्स, एनालॉग, माइक्रोप्रोसेसर, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, ये सब्जेक्ट्स आल्सो आई विल डील, बट नेटवर्क, डिजिटल, माइक्रोप्रोसेसर में एक्सपर्टाइज हूँ। चलो, read this. Resistor capacitor connected in series to a 10 volt DC supply through a switch. The switch is closed at 0. The capacitor voltage is found to cross 0 at t equal to 0.4. First understand, मेरे पास एक रेजिस्टर, एक कैपेसिटर, दोनों सीरीज पे है भाई। 10 वोल्ट का डीसी मैंने कनेक्ट किया स्विच को, स्विच इज क्लोज्ड एट टाइम t इक्वल टू 0। जितना क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किया, आई एम नॉट ए गुड टीचर, आई शुड गिव यू द स्किल्स टू सॉल्व द क्वेश्चन, दैट मेक्स मी ए गुड टीचर, राइट ना। सो आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इंप्रूव करना मेरा काम है। देखो, इसलिए मैं टाइम दे रहा हूँ, हिंट्स दे रहा हूँ। सो अगर आप ट्राई नहीं किया तो मैं कुछ भी नहीं कर सकते। सो ट्राई कर लो, आंसर नहीं मिलेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। सो रेजिस्टर एंड कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज, ओके, स्विच 0 पे क्लोज किया, ओके, बट रेजिस्टर कैपेसिटर में इनिशियल वोल्टेज हो सकते ना, इसलिए ये बोल रहा है capacitor voltage crosses 0 at t equal to 0.4 tau. So when you give 10 volt, capacitor will charge to 10 volt na. If it is at 0,
it will be starting from 0 initially at time t equal to 0 itself, it will be at 0, but he is saying it will cross 0 at 0.4 tau. इसका मतलब क्या? इसका initial voltage is negative. Now when you connect 10 volt, it charges comes to 0, then becomes positive and reaches 10. So when it is becoming 0 is 0.4 tau. Okay, next condition क्या? The absolute value of percentage change required in the initial capacitor voltage. So initial capacitor voltage में कितना change करना चाहिए उसके बारे में बाद में सोच लो, such that the zero crossing should happen at 0.2 tau. अगर मैं initial voltage को कम किया तो maybe it will reach origin faster ना. So examiner is asking what is the value of change I should make it such that this zero crossing should happen at 0.2 tau itself, right? मैं क्वेश्चन अच्छी से एक्सप्लेन किया. देखो, कैपेसिटर का वोल्टेज इज सम नेगेटिव, like this it is reaching origin at time t equal to 0, 0.4 tau, it is reaching origin. Now what I am asking is, instead of that V naught, change it to V naught 2 such that it will reach origin faster. So examiner is asking what is the V naught, कितना चेंज होना चाहिए V naught V2 का रिलेशन निकालना. ओके, ओके. सो दिस इज व्हाट ही इज आस्किंग. V naught कितना चेंज हुआ तो it will happen at 0.2 tau. So इतना तो मैं बताया, ट्राई कर लो यार. आज थोड़ा सा एनर्जी कम है सुबह से. आई एम एब्जॉर्बिंग द फास्टिंग पे हूँ मैंने. मैं एक्चुअली every 2 weeks like we'll get Ekadasi or some other day, I'll do the fasting just for good health. फास्टिंग का मतलब केवल आई टेक वाटर एंड सम फ्रूट्स. उस समय पे ये दिक्कत होता है तो शाउट मोर, आपको क्लास लेना, खाना नहीं खाया बट एनर्जी तो शो करना चाहिए. 54.9%, very good, right answer. 54.9% is a right answer. चलो, so first thing, so RC circuit है ना, so listen here. What is VC of t? VC of infinity plus VC of 0 minus VC of infinite. So whenever you connect here a 10 volt source, time t equal to 0 to a RC circuit, capacitor is having some initial voltage, right? So examiner ने ये बताया, we are starting from V01 and it will reach the origin capacitor at 0.4 tau. Okay, so what I can say, my VC of infinity is how much? उसको पता है VC of infinity कितना? VC of infinity 10 ऐसा. So मेरा VC of t equal to 10 plus, मुझको पता नहीं V01 minus 10 e power minus t by tau. But examiner ये बताया t equal to 0.4 tau. What is my VC of t?
0 इक्वल टू 10 प्लस, मुझको ये पता है नहीं, V01 माइनस 10 e पावर माइनस 0.4 tau by tau. Tau cancels. Okay. So 10 equal to 10 minus V01 into 10 उस तरफ ले लिया मैंने, e पावर माइनस 0.4. कैलकुलेटर कहाँ पे? V01 पता है तो बताओ यार, नहीं तो मैं कैलकुलेटर में करके चेक करता हूँ. e पावर अरे माइनस 0.4 0.67 आ रहा है. 4.92 आ रहा है V0. सेकंड केस में क्या? Same story, but if I take V02 such that it will reach origin at what time? 0.2 tau. Okay. Now, what is the formula? 0 equal to 10 plus V01, V02 minus 10 e power. It should reach origin at what time? 0.2 tau. So, here, what is your 10 is equal to 10 minus V02 into e power minus 0. So आपका V02 आएगा minus 2.2. So percentage change कितना? Minus 4.92 minus 2.2 by 4.92 into 100%. %55 आ रहा है. Okay. Right. So examiner question is this is decreased by how much? This is to be changed by how much? So it should be it should become 2.2 means it should reduce by 4.92 or it should increase by 4.292 minus 2.22, this much compared to its original value. How much it is changing is 55%. Okay, percentage change required in initial. So he is not worrying about positive negative anyway, don't worry about that. So difference between these two by its original value. So is it clear everybody?
कोई दिक्कत नहीं है ना? वेरी गुड. ओके, नो इश्यू, नो इश्यू. हाँ, एक सिंपल से क्वेश्चन. सो ये तो लेंदी क्वेश्चन नहीं, आसान क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते, कर लो. टाइम भी हो गया आज. So directly tell me the answer here itself. So बाकी तो टुमारो, अगर सी अभी तक हमने डिपेंडेंट सोर्स है तो ट्रांजिएंट वाला क्वेश्चन में डील नहीं किया ना, वो सभी चीज कल वाला क्लास में डील करेगा. एक एक डिपेंडेंट सोर्स है तो क्या करना, सभी चीज राइट, ये सभी चीज कल क्लास में वी हैव मेनी क्वेश्चंस, मेनी क्वालिटी क्वेश्चंस है. इसके अलावा एनर्जी कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, सभी चीज. राइट. सो ये क्वेश्चन करके हम क्लास ऑफ कर, बंद करेगा आज. देख लो अभी इतना, सी 2 घंटे का, 2-3 घंटे के क्लास में थोड़ा सा थियरी, इसके अलावा हम कितना क्वेश्चंस किया, 16 क्वेश्चंस किया केवल. राइट. बट अगर मैं डीपीपी सॉल्व करने समय पे सेशन में क्या कितना क्वेश्चंस करेगा, 2 सेशंस में कम से कम 100 क्वेश्चंस लास्ट टाइम किया मैंने, 110 क्वेश्चन. सो इट डिपेंड्स ऑन टॉपिक, एक चीज. दूसरा चीज, डीपीपी समय में मैं हमेशा थोड़ा सा स्पीड चलेगा, क्योंकि डीपीपी का मतलब ही ये है, ऑलरेडी आप लोग प्रैक्टिस करके कॉन्सेप्ट्स भी हो गया, केवल डाउट्स के लिए आया. डीपीपी प्रैक्टिस वाला सेशन में वी डू मोर क्वेश्चंस एट ए फास्टर पेस. सो कंपलसरी प्रैक्टिस वाला सेशंस में कंप्लीट करके आज. सो आज आप डीपीपी फर्स्ट जो दिया ना कल, कंप्लीट करके कल क्लास में आना. कल में भी आई मे टेक ए प्रैक्टिस सेशन. चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ. सीरीज आरसी सर्क्यूट इनिशियली एट रेस्ट. इनिशियली रेस्ट का मतलब इनिशियली कोई व्हाट वी कॉल वोल्टेज नहीं है, स्टेप वोल्टेज अप्लाई किया. स्टेप वोल्टेज का मतलब u of t, the response v of t is this much. If initial voltage is 3 volt, what is the response for the same input? So what is your formula? Vc of t equal to, if Vc of 0 equal to 0, Vc of t equal to 1 minus e power minus t by tau into Vc of infinity. This is given by examiner, 1 minus e power minus 3t into 1. So इससे मुझको ये मिल रहा है tau equal to 1 by 3 and Vc of infinity equal to 1. Right? नहीं है तो सीरीज आरसी at steady state capacitor open, whatever you give the input, same comes at the output, no doubt in it इसमें. Now if Vc of 0 is equal to 3, फाइनल वैल्यू विल नेवर चेंज बेस्ड ऑन इनिशियल वैल्यू. इनिशियल वैल्यू कुछ भी हो सकते हैं, मैंने ऑलरेडी बताया ना, फाइनल वैल्यू सर इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल वैल्यू. अभी Vc ऑफ t क्या होता है सर? Vc ऑफ इंफिनिटी प्लस Vc ऑफ 0 माइनस Vc ऑफ इंफिनिटी e पावर माइनस t बाई tau. सो Vc ऑफ इंफिनिटी कितना, 1 प्लस Vc ऑफ 0 minus Vc of infinity e power minus t by 2. So 1 plus 2 e power minus 3. Just substitution of formula.
बस आज के लिए इतना ही है भाई। तो बाकी तो मैं एक डीपीपी देना चाहिए आपको। हो गया क्लास आज के लिए। सो क्वेश्चन नंबर 21 तक कल दिया ना, इसका कंटिन्यूशन, इसका सारे कंटिन्यूशन। टुडे यू शुड बी एबल टू डू ऑल द क्वेश्चंस, क्योंकि सारे मॉडल्स तो अभी तक कवर हो गया ना। सो प्लीज प्रैक्टिस दैम, डोंट कम टू द क्लास विदाउट प्रैक्टिसिंग। ओके। सो आज 20 क्वेश्चंस दिया, 20 से ज्यादा, राइट। कोई मिस्टेक्स नहीं होता है, मैं सारे मिस्टेक्स करेक्ट करके आपको देता हूँ। थैंक यू गाइस, बाय बाय, सी यू, गुड नाइट। ओके, चलो।